Hello guys, this is Mahendra Jakluwar and welcome to my YouTube channel Mahendra's Physics. And this is your first time to visit my channel, then subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. In this video, we are going to learn about Earth gravitational force. As we know that Earth attracts every object toward itself. Means, when we throw an object in upward direction, after some time this object will be fall on the ground automatically. Why this object will fall on the ground? Because of the Earth gravitational force. The Earth exerts a particular force on that object. Every object which is thrown in upward direction, and that force is called as Earth gravitational force. You might have experienced such examples. When we throw a ball in upward direction, after reaching to the particular height, the ball will come down to the ground. So let's see what happens exactly when we throw the ball in upward direction. Let us consider this is the ground, and when we throw the ball in upward direction like this, we must apply some force on it. And the force which we applied, that is called as applied force. FA stand for applied force. With the help of this applied force, this ball will go up to particular height. There is one more force which is acting on the object in the opposite direction to this applied force. The applied force is acting in upward direction and the gravitational force acting in a downward direction. But when the effect of this applied force vanishes, then the net force acting on this object is nothing but the Earth gravitational force, with the help of which the ball will come to the ground again. Okay, when we throw the object, at that time what happened? The object gains some velocity and it will go in the upward direction, and at the same time the another force, that is force of gravity or the gravitational force, is continuously acting on that object. Therefore, the velocity of the body will be decreases, and finally the velocity v will be become zero at a particular height. And once this velocity becomes zero, now only one force will act on this object, that is the Earth gravitational force in the downward direction, so that the ball will return to the ground. And when the ball will return to the ground, at that time the velocity of the body, which is initially zero, that will be increases, and the velocity of body will be maximum when it is reached to the Earth surface. Means the velocity of the body will be maximum before it fall on the Earth surface. So what is meant by the Earth gravitational force? The Earth gravitational force means the force exerted by the Earth on the object which is near to the Earth surface, that is called as Earth gravitational force. Okay, when the apple fall from the tree, at that time also the Earth exert the gravitational force on that apple, and because of the Earth gravitational force, the apple will fall down on the Earth surface. If there is no gravitational force of the Earth, then the apple will be fly off in the upward direction. Okay, इसका मतलब ये हुआ, अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसके सेंटर की तरफ. अगर ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होता है, तो ऐसे केस में ये बॉडी नीचे नहीं आएगी, वो कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर जा सकती है. इट विल गो इन एनी डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पूछा गया है, एंड दैट इज, if the earth exert the force on the apple, does the apple exert the force on the earth? Okay, इसका मतलब क्या हुआ? अगर अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, क्या एप्पल अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? As we know that according to Newton's universal law of gravitation, हमने पढ़ा है every object in the universe attracts every other object. मतलब दुनिया में का हर चीज दूसरे चीज को अट्रैक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ, जब एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है, एट द सेम टाइम मतलब एप्पल के ऊपर क्या हो रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. एट द सेम टाइम
क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब एप्पल और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर एप्पल को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, एट द सेम टाइम एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, एप्पल अर्थ के ऊपर जैसे गिर रहा है वैसे हमारा अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, एप्पल के पास क्यों नहीं जा रहा है? द आंसर इज, हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर हमने यहां पे फोर्स को कांस्टेंट ले लिया, फोर्स को क्या लिया? कांस्टेंट लिया। इफ यू टेक फोर्स एज अ कांस्टेंट, देन रिमूव दिस फोर्स that is constant as well as equal to sign, then we can write proportional symbol here. Therefore we will get the equation A is proportional to 1 by m, that is A is inversely proportional to m. इसका मतलब क्या हुआ? The acceleration of body is inversely proportional to its mass. मतलब बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कैसे होगा? उसके मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड दिस इज द आंसर। किसका आंसर है ये? अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? लेकिन हमारा अर्थ एप्पल की तरफ क्यों मूव नहीं हो रहा है? उसका आंसर है, एक्सेलरेशन जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा बॉडी में वो कैसे रहेगा? मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर हम एप्पल का मास और अर्थ का मास कंसिडर करते हैं, एप्पल का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू द अर्थ, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अगर यहां पे मास ज्यादा होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा, करेक्ट? और इसका मास अगर कम होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। एज कंपेयर टू द एप्पल, द अर्थ हैज ग्रेटर मास, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी लेस। और ये एप्पल का मास बहुत कम है और इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए एप्पल अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ एप्पल के तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब ये है, मास अगर छोटा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर मास बड़ा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है? कम एक्सेलरेशन मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी या फिर बहुत कम एक्सेलरेट होगी। यहाँ पे एप्पल जो है उसका मास कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कम रहेगा, इसलिए अर्थ एप्पल की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। अब ये तो समझ में आ गया हमको, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या ये लॉ वहां पे ओबे करता है? लेट अस सी। For example, as you know that the artificial satellites, whether it is telecommunication satellite, weather forecasting satellite, किसी भी तरह का सैटेलाइट हो, हमको पता है ये सभी सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ के राउंड में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लाइक दिस। और मान लो कि ये सैटेलाइट है और ये कैसे हो रहा है? हमारे अर्थ के राउंड में घूम रहा है। अभी इस एग्जाम्पल में हमने देखा था मास छोटा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इसलिए वो इधर खींचा जाएगा। इफ वी कंपेयर दिस टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज अर्थ एज वेल एज सैटेलाइट, अर्थ के कंपैरिजन में भी सैटेलाइट का मास क्या है? बहुत कम है, राइट? और अगर हम मून करते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून का भी मास अर्थ के कंपैरिजन में क्या है? कम है। सो जैसा अभी हमने डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन के मुताबिक क्या होना चाहिए? ये मून इसके तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, अर्थ की तरफ, या फिर ये सैटेलाइट भी ऊपर से आके फटाक से यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर गिरना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो अभी तो हमने डिस्कशन किया था, अगर छोटा मास होता है तो उसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये सैटेलाइट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन द बॉडी परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, एट दैट time that body will experience the inward pull toward the center of circle, okay, that is called as centripetal force, FC. At that time
the velocity of body is along the tangent line to the circle, that is called as tangential velocity, let it be vt. okay, मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, जैसे यहाँ पे भी ये सैटेलाइट घूम रहा है तो इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उस फोर्स के वजह से ये सैटेलाइट जो है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आके नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि यहां पे देखिए कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है एट दैट टाइम इट विल एक्सपीरियंस द इनवर्ड पुल, दैट इनवर्ड पुल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में या फिर बॉडी जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उस बॉडी की वेलोसिटी कैसे होगी? अलोंग द टेंजेंट लाइन। इस वेलोसिटी के वजह से ये जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के ऊपर आके गिरते नहीं है। इफ दैट वेलोसिटी इज नॉट देयर देन दिस सैटेलाइट और द मून मे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। करेक्ट? इस वेलोसिटी के वजह से वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। एप्पल जैसे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वैसे सैटेलाइट्स और मून ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम, ये तो हो गया साइंस टेक्स्ट बुक में का, डे टू डे लाइफ में ये कहा दिखता है, तो डे टू डे लाइफ में भी ये एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे आपने मेला लगा होता है, उस मेले में एक मौत का कुआं होता है, शायद आपको पता होगा। मौत का कुआं उसका क्या होता है, एक सर्कुलर से स्ट्रिप्स लगाता है और उसके ऊपर वो एक बाइक चलाता है, करेक्ट, सर्कुलर डायरेक्शन में। एट द टाइम क्या होता है, सर्कुलर डायरेक्शन में जब वो घूम रहा है उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, मतलब वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो बाइक राइडर जो है वो सेंटर की तरफ खींचा जाएगा। बट उसकी वेलोसिटी कैसे होगी? टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंशियल वेलोसिटी के वजह से वो बाइक राइडर जो है वो नीचे नहीं गिरता है, वो कंटिन्यूसली घूमता है। अगर उसकी वेलोसिटी 0 कर दो, उसको बोलो भाई एक जगह पे रुक जा, क्या वो रुकेगा? फटाक से वो नीचे आके गिरेगा। दैट इज द आंसर। Because of this tangential velocity, like this apple, the satellite will not fall on the earth surface. Is it clear? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। एक ग्लास लो, उसमें एक मार्बल डालो और उसका ऐसे रोटेट करो, क्या हो जाएगा? वो मार्बल जो है वो ग्लास के सरफेस के अराउंड घूमता रहेगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं नीचे नहीं गिरेगा? अगेन बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में उसके ऊपर तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होगा, लेकिन उसके वो वेलोसिटी के वजह से जो टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग है उसके वजह से मार्बल जो है वो नीचे नहीं गिरता है। जैसे आप ग्लास को रोटेट करना स्टॉप कर दोगे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 0 होने के कारण v इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो सेंटर की तरफ आके गिरेगा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर उसी को बोलेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे हमको पता है द अर्थ एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। ओके, ड्यू टू दैट फोर्स द ऑब्जेक्ट विल मूव और द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, और उस वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी व्हाट? एक्सेलरेशन। मतलब due to the earth gravitational force the acceleration is generated in the object, that is called as earth gravitational acceleration or acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity is denoted by small letter g. इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल लेटर g से, और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 उसका वैल्यू कितना होता है? 9.8। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट क्या आएगा? सीजीएस यूनिट फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिराइव द डेरिवेशन फॉर acceleration due to gravity. Derivation for small g, that is derivation for acceleration due to gravity. अब ये acceleration due to gravity का derivation क्या होता है वो हमको देखना है, उसका derivation कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। As you know that according to Newton's second law of motion, that is F is equal to m into a. F is equal to क्या होता है? Mass times acceleration.
दिस इज इक्वेशन नंबर 1. कहां से लिया हमने? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे से इक्वेशन क्या ले सकते हैं हम? F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर. ओके, R स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? F इज इक्वल टू फोर्स, that is M is the mass of the object and A is the acceleration. And here F is equal to what? Force, gravitational force, G is the gravitational constant. M is the mass of the earth. ये किसका मास है? अर्थ का मास है. The small m is mass of the object and R is what? Radius of the earth. मतलब ऑब्जेक्ट और अर्थ में का डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से लेते हैं, इसलिए हमने रेडियस लिया. फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या आएगा? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस टू इक्वेशंस आर सेम, देन वी कैन राइट द राइट हैंड साइड इक्वल. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 you will get, that is MA is equal to G capital M small m upon R square. Okay, is it clear? But here the acceleration which is produced in the body, it is due to the earth gravitational force. यहाँ पे बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से. तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसके लिए सिंबल क्या है? स्मॉल g. वी कैन राइट m into g, where g is what? Acceleration due to gravity, which is equal to capital G capital M small m upon R square. Okay, अब दोनों भी साइड में इस इक्वेशन के स्मॉल m कॉमन है तो इसको कैंसिल कर देंगे. यू विल गेट द न्यू इक्वेशन, दैट इज G is equal to capital G capital M upon R square, which is the required expression for the acceleration due to gravity. ये acceleration due to gravity के लिए क्या है? एक्सप्रेशन है. This is the mathematical formula for acceleration due to gravity. Okay, so know that the value of G is 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. इसका वैल्यू है ये G का वैल्यू. लेकिन ये G का वैल्यू आया कहां से? ओके, जैसे we know the equation for G, that is small g, that is capital G M upon R square, where यहाँ पे कैपिटल G क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ओके, कैपिटल M इज व्हाट? ये है मास ऑफ द अर्थ. Mass of the earth, and R is equal to radius of earth. Radius of earth. Okay, if we put these all values, then we will get the value for G. Let us we have equation, that is G is equal to capital G. What is the value for capital G? That is 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, and next M into M, 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम. अर्थ का मास कितना होता है? 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम. Okay, and what is the radius of the earth? The radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. 6.4 into 10 to the power 6 meter. Okay, लेकिन यहाँ पे क्या है? R square है, so we have to take square. Okay, solve this. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 6.67 into 6 into 10 to the power minus 11 and 10 to the power 24. कितना आएगा? 10 to the power 13 divided by 6.4 into 6.4. 6.4 का स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे? 6.4 into 6.4. अब यहाँ पे 10 to the power 6 to the power 2 और एक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 6 2 12. Therefore this will become 10 to the power 12. अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 6.67 into 6 divided by 6.4 into 6.4 into 10 to the power कितना आएगा?
10 to the power ये -12 प्लस 13 10 to the power 1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ 10 ही है। सो इसका जो आंसर निकालेंगे तो वो आंसर आएगा इसका कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा 9.77 एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दिस 9.77 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर acceleration due to gravity small g. From this equation, it is clear that the acceleration due to gravity, that is small g, depends on the mass of the earth and the radius of the earth. Means small g का जो वैल्यू है, जिसका वैल्यू हमने निकाला था g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो सिर्फ अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड होगा और अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड होगा। द वैल्यू ऑफ g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी पे ये g का वैल्यू डिपेंड्स नहीं होगा। मतलब g का जो वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे एक जगह पे सेम होगा हर बॉडी के लिए, चाहे वो बॉडी का मास बड़ा हो या फिर छोटा हो। अदर प्रॉपर्टीज जो है बॉडीज के वो अलग हो, लेकिन g का वैल्यू सेम होगा। इसके ऊपर 1519 में गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने 2 बॉल लिए थे, आयरन बॉल्स, और उनको एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया था और वो दोनों भी बॉल्स जो है एक ही समय पे नीचे गिर रहे थे। और इसके ऊपर और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। जैसे अगर हम देखते हैं तो अगर हम एक छोटी बॉडी और दूसरा एक बड़ी बॉडी लेते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट masses, one body is having less mass, another is having greater mass. At that time, if you drop the 2 bodies from particular height, then कौन सी बॉडी पहले नीचे गिरेगी? ऑफ कोर्स जिसका मास ज्यादा है वो वाला, ठीक है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर जो g है एक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो सेम है? वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने फीदर्स लिए और एक आयरन बॉल लिया, उन दोनों को एक पर्टिकुलर हाइट से अगर हमने ड्रॉप कर दिया तो क्या हो जाएगा? आयरन बॉल जो है वो जल्दी आके जमीन पे गिरेगा, लेकिन फीदर जो है, जो बर्ड्स के पंख है, वो जल्दी नहीं गिरेंगे, वो थोड़ी देर के बाद जमीन पे आके गिरेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ जी जो हम बोल रहे हैं कि दोनों भी बॉडीज पे सेम एक्ट होगा, ये रूल तो यहाँ पे ओबे नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम फीदर को ऊपर से डालेंगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी कई फोर्सेस एक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फीदर्स आर फॉल, जैसे एक पेपर का पीस लिया ऊपर से डाल रहे तो ऐसे वो तैरते हुए आएगा, वो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा। जैसे इस चौक को ड्रॉप कर रहा हो तो वो सीधा नीचे चले जाएगा, लेकिन पेपर का पीस ऐसे सीधा नहीं आएगा, वो ऐसे फ्लोट होते होते आएगा। क्योंकि व्हेन अ बॉडी इज फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस फोर्स ड्यू टू द एयर एक्ट्स ऑन दैट बॉडी, करेक्ट। बॉडी जो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स है या फिर अपवर्ड फोर्स को बाइंड फोर्स भी बोला जाता है, वो उस बॉडी के ऊपर एक्ट होगा। और बॉडी का वेट जो है, उस बॉडी का वेट इस रेजिस्टेंस फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए वो फ्लोट होगा, ठीक है, और वो स्लोली आके नीचे गिरेगा। लेकिन जब हम आयरन बॉल का वेट कंसिडर करेंगे, द वेट ऑफ द आयरन बॉल इज मच ग्रेटर देन दिस बाइंड फोर्स, देयरफॉर द बॉल विल डायरेक्टली फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। ऐसे ही अगर हम फीदर्स को और बॉल्स को लेते हैं और इनको वैक्यूम में अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वैक्यूम में द अब्सेंस ऑफ एयर कंप्लीटली, जहां पे एयर बिल्कुल नहीं है, ऐसे जगह पे अगर यही एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उस समय पे क्या होगा? बॉल, द आयरन बॉल एज वेल एज द फीदर्स दोनों भी एक साथ जमीन पे आके गिरेंगे, करेक्ट। क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है? द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, वहां पे रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता, बाइंड फोर्स ड्यू टू एयर नहीं होता है, इसलिए फीदर्स और बॉल दोनों एक समय पे नीचे आके गिरेंगे। व्हेन वी ड्रॉप बोथ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, टेक्स्ट बुक में उसका यूट्यूब लिंक भी दिया है, मैं भी अपने वीडियो के नीचे उस यूट्यूब लिंक को शेयर कर रहा हूं, आप वहां जाके देख सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे पंख
यानी कि फीडर्स और बॉल दोनों एक साथ नीचे आके गिरते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कहीं एक पर्टिकुलर जगह लेते हैं अर्थ सरफेस की, उस जगह पे जी का वैल्यू सेम होता है। वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि बॉल कितना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या फिर छोटा है, या राइट, उसका मास कितना ज्यादा है या फिर कम है। irrespective of their masses and any other property of the object, the value of g at a particular place on the earth surface is same for all the objects. Is it clear? Our next topic is variation of g. Does the value of g, that is acceleration due to gravity, same on the earth surface everywhere? The answer is no. क्या g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे हर जगह पे सेम होता है? तो आंसर है हमारा नो, क्योंकि हमें पता है द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। हमारा अर्थ जो है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह है, राइट। द अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्क्स एट इक्वेटर। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, वो क्या है, पोल्स पे फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्क है, राइट। इक्वेटर पे यहां पे देख सकते हो आप। इफ यू कंसिडर द सेंटर ऑफ द अर्थ हियर, दैट इज सी, देन दिस डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मच लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द सेंटर। ओके, सेंटर और इक्वेटर में का डिस्टेंस जो है ये बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पोल ऑफ द अर्थ। और यही रीजन है कि जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे एक जैसी क्यों नहीं होती, वो वेरी क्यों होती है। ठीक है, जैसे हमको इक्वेशन पता है, द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे m इज द मास ऑफ द अर्थ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये r जो है, जैसे हमने यहां पे देखा भी, r चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है। जैसे अर्थ सरफेस पे हम एक जगह पे से दूसरी जगह जा रहे हैं तो r की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ r इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ r हियर। यहां का जो r का वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू है, वो क्या है, बड़ा है इसके कंपेरिजन में। पोल पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इसीलिए g का वैल्यू जो है वो पोल पे ज्यादा रहेगा और इक्वेटर पे कम रहेगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे रेडियस जो है अर्थ का वो डिनोमिनेटर में है इस इक्वेशन के। इसलिए अगर डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी मतलब आर की वैल्यू अगर कम होगी तो जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। हियर यू कैन सी द रेडियस ऑफ द अर्थ इज स्मॉल एट द पोल एंड लार्ज एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ज्यादा है, पोल पे कम है, इसलिए जी का वैल्यू कहां पे, पोल पे ज्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा। अगर हम जी का वैल्यू देखें, जी एट पोल अगर देखते हैं, जी की वैल्यू पोल पे वो कितना आएगा, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही वैल्यू जी एट इक्वेटर अगर हम निकालते हैं, जी एट इक्वेटर ये कितना आएगा, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो पोल पे के जो वैल्यू है उससे क्या है, कम है, राइट। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मैक्सिमम और ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at equator, correct. The reason is why it is so, the reason is the value of g is depends on the radius of the earth. So this is the variation of g on the surface of the earth. The first case is what, variation of g on the surface, variation of g on the surface of the earth. And the second case is variation of g, that is acceleration due to gravity with height. अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर से एक पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं तो g का वैल्यू क्या होगा,
whether it is increase or decrease. Let us see. As we know that when the object is on the earth surface, then acceleration due to gravity small g is given by capital G capital M upon r square. करेक्ट. अगर अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका ये रेडियस कितना हो गया, सेंटर से लेके के सरफेस तक का डिस्टेंस, उसको r बोलेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ. लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है हमारा, राइट, ऑब्जेक्ट का हाइट इंक्रीज हो रहा है. मान लो कि ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है, एक पर्टिकुलर हाइट h पे, देन व्हाट विल बी द टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस क्या हो जाएगा या फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, दैट विल बिकम r plus h. The distance between the object and earth will become r plus h, which is greater than what? Which is greater than r. r plus h obviously greater than रहेगा किससे, r से. और अभी हमने देखा था अगर r की वैल्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि r डिनोमिनेटर है इस फॉर्मूला के, अगर r की वैल्यू इंक्रीज होती है तो g का वैल्यू क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली कम होने वाला है. इसीलिए अगर हम अर्थ सरफेस पे से एक पर्टिकुलर हाइट तक जाते हैं, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, तो g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है. ओके, द g will be decreases, the acceleration due to gravity will be decreases as we go above the earth surface. This is the second case for variation of g. Now we are going to see the third case. Okay, the variation of g with depth. Now the third case is the variation of g with depth. Okay, we have a formula that is g is equal to gm upon r square. Okay, डेप्थ मतलब अभी क्या हो रहा है, हम अर्थ सरफेस के या अर्थ के अंदर जा रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट इनिशियली on the surface of the earth, at that time the value of g will be 9.8 meter per second square. When you go below the earth surface or under the earth, at that time what happen, the r will be decreases. So from this formula one would think that if r is decreasing then g automatically increases, but the answer is no. When you go under the earth, the value of g also decreases. The value of g will not increase. हमेशा ध्यान में रखना है. इस फार्मूला से ऊपर जैसे हमने हाइट का देखा था, हाइट अगर बढ़ रहा है, r बढ़ेगा तो g कम होगा. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, r कम हो रहा है, राइट, r कम हो रहा है, g बढ़ेगा नहीं, g भी कम होगा. वो क्यों होगा, मान लो कि अभी हम अर्थ सरफेस पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है और यहाँ पे उसका सेंटर है. नाउ दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज r. अभी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, r विल बिकम लेस, मतलब r क्या हो जाएगा, r माइनस d हो जाएगा. When the object is on the earth surface, at that time the mass of the earth is considered as a m, the whole mass is taken. But when the object is at particular depth, then will not get the whole mass of the earth. ये पूरा मास कंसिडर नहीं करते, हम इतना ही मास कंसिडर करते हैं, ये डॉटेड लाइन वाला. और अगर हम और डेप्थ में जा रहे हैं तो क्या होगा, एट दैट टाइम हमको इतना ही मास कंसिडर करना होगा, इतना. ओके, और अंदर जा रहे हैं, ऐसे करते करते अगर हम सेंटर तक पहुंच गए, सेंटर तक, तो वहां पे अर्थ का मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर अर्थ का मास m इज इक्वल टू 0 हो रहा है, या इस फॉर्मूला में m इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ g क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर पे g का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा. सेंटर पे 0 है, सरफेस पे कितना है, 9.8 है. मतलब जैसे सरफेस से अगर हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, g का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. फाइनली इट विल बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ g विल बी डिक्रीजेस विथ डेप्थ. 3 केसेस देखे थे हमने इसमें, वेरिएशन ऑफ g. फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या हो जाएगा, पोल पे से इक्वेटर के तरफ जा रहा है तो g का वैल्यू कम होगा, इक्वेटर के पास से पोल के तरफ जा रहा है तो g का वैल्यू बढ़ेगा. द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर. ओके, सेकेंड केस, द वेरिएशन ऑफ g विथ हाइट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस, the value of g is maximum, that is 9.8 meter per second. But as you go above the earth surface, the value of g will be decreases. Third case, the variation of g with depth.
according to this formula one would think that if r is decreasing g will be increases, but ऐसा नहीं होता है, ठीक है. The value of g also vary with depth, but as you go, जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, the g will be decreases with the depth. The g will be decreases with depth. As the depth increases, depth अगर increase हो रहा है तो g का वैल्यू क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगा. एंड द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट सेंटर ऑफ द अर्थ. हमेशा ध्यान में रखना, द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ का मास जो है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं. देन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द वैल्यू ऑफ g विल बिकम 0. Our next topic is mass and weight. Okay, first we will see about the mass. What is mass? As you know that mass, the amount of matter present in the body is known as mass. किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, मास बोलेंगे. द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास. ओके, मास इज डिनोटेड बाय लेटर m, स्मॉल m और कैपिटल M. ओके, एंड द SI unit of mass is what? Kilogram. And the CGS unit of mass is, CGS unit for mass is what? It is gram. मास का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, और उसका CGS यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा. ओके, नेक्स्ट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या है मास? स्केलर क्वांटिटी है. मीन्स मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड अलोन. मास डजंट हैव एनी डायरेक्शन. मास को कोई डायरेक्शन नहीं होता, या फिर अगर हमको मास एक्सप्लेन करना है, डायरेक्शंस देने की जरूरत नहीं है. मेरा मास 70 किलोग्राम है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं. करेक्ट. सो मास इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड अलोन बट नॉट डायरेक्शंस. ओके, द सेकेंड वन इज द मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर. मास जो है हर जगह पे कांस्टेंट होता है. क्या होता है ये? कांस्टेंट एवरीवेयर. किसी भी जगह पे मास जो है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट होता है. इतना ही नहीं, अगर कोई दूसरे प्लैनेट पे अगर जाते हो आप तो वहां पे भी उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? सेम होगा. द मास विल नॉट चेंज. करेक्ट. मास विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अगर हम मून पे भी जाते हैं तो मास क्या होगा? उतना ही होगा. अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे 1 kg है तो मून के ऊपर भी उसका मास क्या होगा? 1 kg होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. Mass is what? Measure of inertia. As you know that the every body has particular property to remain in its existing position, and that property is called as inertia. The next topic is weight. Weight is denoted by letter W. And what is meant by weight? The amount of gravitational force acting on given mass or given object is called as weight. One more time. The amount of gravitational force acting on given object or given mass is known as weight. उसको weight बोलेंगे हम. ठीक है. And weight is denoted by letter W. And the SI unit for weight is Newton. Weight का SI unit क्या आता है? Newton आता है. Weight हम किलोग्राम में मेजर नहीं करते. हमारे डे टू डे लाइफ में हम weight किलोग्राम में ही बोलते हैं, राइट. लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में weight and mass are totally different. Weight और mass different. The CGS unit of weight is dyne. Okay, the equation for weight is equal to mass into acceleration due to gravity. That is W is equal to m into g. Okay, जैसे मास के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया था, वैसे ही वेट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे. नंबर 1, वेट इज व्हाट? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेट क्या है? Vector quantity है. Means the quantity which has magnitude as well as direction. The differences between the mass and weight. The first difference is, तो उसका definition ही रहेगा, the amount of matter present in the body is called as mass. And second, इधर weight में क्या आएगा? The amount of gravitational force acting on given mass or given object is called as weight. The second one is mass is denoted by letter M. Weight is denoted by letter W. The SI unit for mass is kilogram and SI unit for weight is Newton.
Mass is a scalar quantity which has magnitude alone, no directions, and weight is the vector quantity which has magnitude as well as directions. Next point is mass is constant everywhere. The value of the mass will not change from place to place, but the weight will not constant. Weight change हो सकता है, weight हर जगह पे constant नहीं होता. ठीक है? So the remaining chapter we'll study in the next video.